Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we've got program 5 of Kids Time, and again we'll be using the information from the Waqf in syllabus so that the viewers all around the world can join in and learn with us, inshallah. And as normal, we start with a dua, we discuss a hadith, and then we go on to some extra general Islamic knowledge. क्या हाल है आप सबका? ठीक हो? आज का प्रोग्राम शुरू करें? कौन सुनाएगा आज की दुआ? जी बरीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। जज़ाकल्लाह। और कौन इसकी ट्रांसलेशन सुनाएगा? जी मुदस्सिर। मुदस्सिर को माइक दें। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी पलीदियों से और तकलीफ़ों से। जज़ाकल्लाह। Who's going to tell us the translation in English? Talha? Oh Allah, I seek your refuge from all sorts of harmful and vicious things. Good boy, well done. What does that mean then? What are we seeking Allah's refuge? Remember what refuge meant? Who remembers what refuge meant? We talked about it, I think, in our first program. Bria. We take Allah's protection like an umbrella. Yeah, like an umbrella. So we take Allah's protection from all bad things. And that's what we're asking Allah's protection for when we go into the bathroom, from all sorts of physical and spiritual things. So physical things are things that can harm us physically, like if we get hurt, or that can make us ill, or that can make us feel ill. Spiritual things that can harm us are things like that make us do bad things. Those are spiritual things that we want Allah's protection from being harmed physically and spiritually. और किसको समझ आई है इसकी? जी सलमान, आप बताएं। इसकी मुझे समझ आई है कि अगर आपने जब बाथरूम में जाते हैं आपको अच्छा सफाई करनी चाहिए कि जब आपकी जो रूह होती है जो जब अल्लाह मियाँ के पास जाती है, फिर अगर वो साफ़ होगी फिर अल्लाह मियाँ आपको जन्नत भेजेगा, अगर बहुत गंदी होगी फिर वो हेल में भेजेंगे। जी, आप अपने घर में हमारे लिए ये एक तरबियत का ज़रिया है जो हमें दुआ सिखाती है कि हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप अपने बेडरूम्स को या अपने घर के बाकी हिस्से को साफ़ रखें, अपने वॉशरूम्स को भी हमेशा साफ़ सुथरा रखें और अल्लाह ताला से पनाह मांगें कि वो आपको हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी पलीदियों से और तकलीफ़ों से दूर रखे। आपके जहन में बुरे बुरे ख़यालात आ सकते हैं या कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वॉशरूम ऐसी जगह है जहाँ पे आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते हो या जहाँ पे आप बहुत दुआएं नहीं करते हो, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अंदर दाखिल होते हुए आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हो कि यहाँ पे भी आकर मेरे दिमाग में जो है वो बुरे बुरे ख़यालात ना आए या ऐसे ख़याल ना आए जिससे किसी को नुकसान पहुँचे या मैं शैतान के बहकावे में आ जाऊँ। ठीक है? So we're saying this dua when we're about to go into the bathroom, because a bathroom, it's not a nice place. It's not a clean place. It's not a place where we can say lots of prayers or where we can do our prayers in there. And so we're asking Allah's protection for helping us to stay away from anything that can harm us. What do we say before we read a hadith? Who can tell me what do we say? Isra. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. और कौन आज की हदीस सुनाएगा? जी ईशा, आपको याद है? At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. And what does it mean? The one who truly repented of sins was like the one who had never sinned. और कौन इसकी ट्रांसलेशन सुनाएगा?
जी स्मिता। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे होता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो. So what does that mean? Yes, someone. Say if you did something bad and it's written down, then if you say astaghfirullah or read the hadith, Allah will forgive you. So what it means is the one who truly repented of sin. That means that somebody that did something wrong. Sins are things that we do that are wrong. So if somebody does something wrong and they truly repent, that is, they ask forgiveness from Allah and they really mean it and they really promise not to do it again, then Allah, it'll be like that they've never committed that sin before. So if there's lots of things that we might do wrong, but we really have to try to then not do it wrong again, because we can't just do wrong things and then keep asking Allah's forgiveness and then say, well, we've asked Allah's forgiveness, it's like we haven't sinned, we can do that same sin again. That's not how it works. When we truly ask for repentance, that's what it says, who truly repented. So in their heart, they're truly sorry for what they've done and they're truly going to try not to do it again. It'll be like they haven't done the sin before. जी Anna? Can I say something similar to that? If you do a really bad thing and Allah's cross with you, it means that if you say to Allah that you're really, really, really sorry, then He might just forgive you. जी, और आपको एक वाक़या सुनाऊं कि एक आदमी था, एक बुरा आदमी था, वो आग की पूजा करता था और आग को अपना खुदा मानता था. तो एक दफ़ा बारिश हो गई और बहुत दिन तक मुसलसल बारिश होती रही. तो उसने क्या किया, उसने चिड़िया को रोज़ दाना डालता था. एक बुज़ुर्ग उसके पास से गुज़रा और उसने कहा कि बूढ़े आदमी, तुम क्यों इसको दाना डाल रहे हो रोज़ चिड़ियों को? तो उसने कहा कि बारिश हो गई है और चिड़िया जो है वो बारिश में उड़ नहीं सकती, तो इसलिए मैं रोज़ उनको दाना डालता हूँ. तो उसने कहा कि तू तो काफिर है, तुझे इस चीज़ का अजर कहाँ से मिलेगा? तो बूढ़े ने जवाब दिया, वो बूढ़ा आदमी जो आग की पूजा करता था, उसने जवाब दिया कि इसका अजर तुमने मुझे नहीं देना, मुझे इसका अजर जब मिलना होगा जहाँ से मुझे मिल जाएगा. कुछ अरसे के बाद वो आदमी जो बूढ़े काफिर का मजाक उड़ा रहा था, वो हज करने गया तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी तवाफ़ कर रहा है, खाना काबा के गिर चक्कर लगा रहा है. तो उसने वो देख के हैरान रह गया और उसने उसको कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे खुदा ने जो है वो मुझे माफ़ कर दिया है. बाज़ दफ़ा आपकी छोटी सी नेकी भी जो है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है. अगर आप माफ़ी मांग लें और खुदा ताला की तरफ वापस लौट जाएं तो अल्लाह ताला उस काफिर को भी माफ़ कर देता है जो सच्चे दिल से खुदा ताला की तरफ बढ़ गया था, खुदा ताला के करीब आ गया था. Athiya Baji was telling us a story or a little incident about somebody who used to worship fire. So they thought that the fire was their God, was their Allah, and he used to worship the fire. And every day another man saw him and he was putting out food for birds. It had been raining and raining for a long time, and this man every day he used to go and put food out for the birds. And another man came to him and said, why are you putting this food out for the birds? You're not going to get any forgiveness, you're not going to get any reward because you're a kafir, you're not believer, you don't believe in Allah. And the man said to him, somebody, if I get my reward, I'll get it from somebody. It's not your place to say whether I'll be rewarded or not. Sometime later, the man was going for Hajj, and he saw that first man, the one that was worshipping fire, he saw that he was going around the Kaaba, he was doing his tawaf around the Kaaba, so walking around the Kaaba. And he went to him and said, what are you doing here? You're not a Muslim, you're not a believer of Allah, why are you here? And the man said to him that he got his reward from Allah for giving those food to the birds, and Allah had made him a Muslim, so Allah had made him a believer, and that was part of his reward. So what they're saying is that if you truly repent, if you really ask Allah for his forgiveness, then it'll be like you've never sinned, so you've never done those wrong things that you had done before. Yes, Isra. What if you've done a really, really bad thing? Does Allah still forgive you?
Well, we don't really know what things Allah will forgive and what things Allah will not forgive. But what this hadith says is that one that truly repented, so the one that was really, really sorry for doing the bad things, Allah will forgive them. Remember a few programs ago we talked about Rahim, didn't we? Ar-Rahim. We said that Allah is the one that's the most merciful. So Allah will forgive all the things we do and we ask Him for. And we gave a few incidents in that program as well, didn't we? About how big Allah's mercy is, how much He forgives us. When we do wrong things at home, if we're naughty at home, our parents forgive us, don't they? They always do. And the same way, Allah is even more merciful than our parents, even greater, much, much greater. And so that's what we have to say, is that if we truly repent, if we truly do astaghfar, if we ask forgiveness from Allah, then Allah inshallah will forgive us. जी, और आज का हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, हमारा जनरल नॉलेज का, और उसमें हम बिलीव्स पढ़ रहे हैं, और आज का हमारा बिलीव जो है वो इन द लास्ट डे. And it follows on from what we were just talking about in the hadith and what we were talking about in the prayer that we did today, the belief in the last day. What it is that everything that we're doing in this world, everything we do, the way that we behave, what beliefs we have, we're doing it for a reason. We're doing it, we're looking forward to that last day, that day of judgment. Who can tell me about that? Yeah. We all have to die, and when we die, Allah decides if we can go to heaven or hell, and if we have been doing good deeds, we'll be going to heaven, which where you will live in comfort and peace forever. But if you were doing bad deeds, you'll go to hell and you'll be punished. But as soon as you realize, you will eventually be able to fit for heaven. So hell is like a place where you're purified. It's a lot of pain in hell because you are being punished, but eventually then you will go to heaven after that. बीइंग मुस्लिम हमें ये सिखाया गया है, हमारी तालीम का ये हिस्सा है कि जहाँ हम खुदा ताला की वहदानियत का, खुदा ताला के एक होने का यकीन रखते हैं, खुदा ताला की किताबों का यकीन रखते हैं, उसके भेजे हुए पैगंबर और रसूलों का यकीन रखते हैं, इसी तरह हम आखिरत के दिन पे भी यकीन रखते हैं जब हम सब दोबारा से उठाए जाएंगे और हमें अपनी नेकियों का और अपने गुनाहों का जवाब देना होगा और हमें हमसे उन सब का हिसाब लिया जाएगा. लेकिन वही चीज़ें हैं कि देखो आपको हर जगह अल्लाह ताला ने बताया है, आप कोई भी काम करने लगो उसमें आप अल्लाह ताला की पनाह मांगते हो. और अगर आप जैसे अहादीस हमें ये बताती हैं कि अगर आप तौबा कर लो, और कुरान मजीद में भी यही है कि अगर आपने कोई आपसे गलती हुई है और आप तौबा कर लो तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देता है. तो इस तरह हम आखिरत के दिन में अपने नेकियों को हमें अच्छा सिला मिलेगा ना, वरना अगर आप बुरे काम करते जाओगे तो क़यामत के दिन आग ही मिलेगी, दोज़ख की आग खानी पड़ेगी उन लोगों को जो लोग बुरे काम करते हैं और गुनाह करते हैं. और अगर आप अच्छे काम करते जाओ तो आपको जन्नत मिलेगी. और कुरान मजीद में भी आपने देखा है, आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए किन इनामात का ज़िक्र किया है कि बहुत सारी दूध की नहरें होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें जो इंसान के फ़ायदे के लिए हैं. और दोज़ख में आपको दोज़ख की आग खानी पड़ेगी. तो आप सबको क्या चाहिए? जन्नत चाहिए ना. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे काम करने पड़ेंगे. आप थोड़ा सा भी कोई काम बुरा करते हो, किसी को किसी क्लास फेलो को भी आप थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो ये याद रखो कि हो सकता है अल्लाह ताला को वो बहुत बुरा लगे, है ना, और आपकी वो छोटी सी जो एक बुराई है उसका आपको बहुत बड़ा गुनाह मिले. तो बेहतर है कि आप अपनी छोटी छोटी नेकियों को इकट्ठा करो, दूसरों की हेल्प करो, अच्छे अच्छे काम करो, तो जन्नत मिलेगी ना. अभी से अपनी आदत बनाओ. अगर अभी से आप लोग बुरे कामों की या छोटे छोटे गुनाहों को अपनी आदत बना लोगे और सोचोगे चलो कोई बात नहीं, इस पे तो छोटा सा गुनाह मिलेगा, तो फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो वो चीज़ें आपकी आदत बन जाएंगी. तो बेहतर क्या है कि अभी से आप इन चीज़ों के साथ फ़ाइट करो कि आपने बुरे काम नहीं करने. ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल होती है,
थोड़ा सा दिल भी करता है कि चलो थोड़ा सा तंग कर लो दूसरे को, छोटा सा झूठ बोल लो, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें क़यामत के दिन इन सब बातों का हिसाब देना है। जी बढ़िया। आपको पता है जब आपकी लाइफ में आप जब कुछ रॉन्ग करते हो फिर अल्लाह में आपको फॉरगिव कर लेते हैं, और जब आप मरने लगे होते हो फिर आप जब कुछ गंदा काम करोगे और फिर अल्लाह में आपको फॉरगिव क्यों नहीं करता? I think she's asking about if you're very old and you've done lots of bad things in your life and you ask. Then तब आप तौबा करो, हाँ, है ना, तब आप जाके तौबा करो। देखो आप ये तो खुदा ताला पे है कि वो आपको माफ़ कर दे, लेकिन अगर आप ये सोच के गुनाह करते जाओ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो तब मैं अल्लाह मियाँ से सारी माफ़ी मांग लूँगा, मैं टाइम पे नमाज़ पढ़ूँगा, ये वो, अगर आप ये सोच के गुनाह करते हो तो फिर अल्लाह मियाँ को आपको माफ़ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। लेकिन फिर भी हर हाल में खुदा ताला का जो है वो रहम मांगना चाहिए, फ़ज़ल मांगना चाहिए। आगे माफ़ करना या ना माफ़ करना खुदा ताला पे है। The other thing लेकिन is अपनी नीयत ठीक रखनी चाहिए। we don't know when we're going to die. People don't know. Some people live till they're very old and some people don't. And so there's a saying which says you should live every day as though it was your last. So every day you have to be the best you possibly can be in case it is your last day. And what Adiabaji was saying is that we have to, everything that we do has to be the best that we do. We try and do the best thing that we do. But we don't know which things Allah is going to forgive and which things Allah is not going to forgive. But we can't have our intention that, okay, we'll do lots of wrong things as we're growing up, and then when we're very old, we'll ask Allah's forgiveness and Allah will forgive us. Then you're going into it in the wrong way. When we look at Allah, looks at intention of what we're doing. If we make a mistake and do something and then we ask Allah's forgiveness, then that's different. But if we carry on doing wrong things because we think, oh, well, that's all right, Allah will forgive us later anyway, then that's not good. Gee. If you do bad things, then you have a dirty soul, and then if you don't say astaghfirullah, then you go to hell, and then there's really pain, and then they clean out the dirty bits, and then when you're clean and pure, then you can go to heaven. Yes, that's right. That's right. Gee, Sunita. Do you know when you die, don't you get given and you have a new life? Well, your physical body doesn't have a new life, but the soul, so the soul that's inside you, that will have the new life, not your physical body. जी सलमान। When you die and you go to Allah and if you go to hell, can I actually feel it, or does the soul feel it? You are the soul. Your soul is part of you. So your physical body won't feel it, but your soul will feel it, so you will feel it. देखो जब कोई फौत हो जाता है तो आप उसको पेंट करो या कुछ भी करो उसको एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो ज़िंदा होता है तो उसको दर्द होती है ना, पेन होता है ना, तो फिर ये तो हमें समझ लेना चाहिए कि जब आपकी रूह ऊपर जाएगी तो उसको कितनी तकलीफ़ होगी। लास्ट प्रोग्राम में हमने आपको सिखाया था फूल बनाना, तो आज कौन कौन बना कर लाया है? ओके, कौन दिखाएगा? तला से शुरू करें। जी तला, आप क्या बना कर लाए हो? एक जहाज बनाया जब तला मर के जा रहा था, और दुआ भी है इधर ऊपर, और तला ने वो सारे जहाज में दुआ पढ़ी और तला कॉकपिट में गया था एवरी जहाज पे। देखा, तला ने जहाज बनाया था जब तला अमेरिका गया था। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया है। और किसने बनाया है? जी, आप क्या बना के लाई? आपका क्या नाम है? आयज़ा। I tried to make your flowers. देखा कितने कलरफुल है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारे बने हुए हैं। And I couldn't find pipe cleaners, so I bought glow sticks, and they also glow in the dark. देखा,
अगर आपके पास पाइप क्लीनर्स नहीं है तो आप इन स्ट्रॉस के साथ भी बना सकते हैं। कितने अच्छे बनाए हैं। और बरीरा आप क्या लाए हो? मैं ना लास्ट टाइम की फूल भूल गई थी, ये मैंने एक बनाया है। और मैंने ये वाला भी एक बनाया है। और फिर लास्ट टाइम के जो फूल थे ना, मैंने पर्पल से बनाए थे। पर्पल कलर के बनाए हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं ना। और इसरा आप क्या लाए हो? मैं लास्ट टाइम की मैंने फूल बनाए थे। माशाल्लाह। और स्मिता आप क्या लाई हो? मैंने फूल बनाया कल, और क्या मैंने स्टेपल किया, और मेरी मामा ने भी स्टेपल किया। देखा, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है या आपके पास ग्लू से नहीं जुड़ रहे तो आप उन्हें स्टेपल भी कर सकते हैं। स्मिता ने आपको एक नया आइडिया दिया है। और आप क्या लाए हो मुदस्सिर? मैं आज की दुआ लिख कर लाया हूँ। कैलीग्राफी की है। और नीचे मैंने उर्दू का और इंग्लिश का ट्रांसलेशन लिखा है। देखा शाज़ेबाजी, बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कोई ना कोई क्रिएटिव काम करते रहें। It's not easy learning to copy and write the things in Arabic as well. बिल्कुल। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हम आर्ट एंड क्राफ्ट आपको सिखाएंगे। आज हम आपको सिखा रहे हैं ड्राइंग करना। मैं आपको बहुत बेसिक्स से शुरू करूँगी कि ट्रीज़ कैसे बनाते हैं, उस पर लीफ कैसे बनाते हैं। सो मेन हमारा जो है वो ट्री के ऊपर होगा, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लैंडस्केप बनाना सीखेंगे। तो क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बनाना है, तो मैं पहले पेंसिल के साथ थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखा दूँगी, फिर उसके बाद मैं चारकोल के साथ बाकी का एरिया फिल कर दूँगी, ठीक है। मैंने ये देख लिया कि मैंने इतने हिस्से पे ट्री बनाना है और बाकी का एरिया मैंने छोड़ देना है। पीछे मैंने कुछ माउंटेन्स बनाई हैं, ठीक है। और अब आप हमेशा याद रखें कि जब आप ड्राइंग शुरू करते हैं तो आपने 3 टोन्स याद रखनी है, एक डार्क टोन, एक मिडिल टोन और एक बिल्कुल लाइट टोन्स, ठीक है, जिससे हम चीज़ों की शेप बनाते हैं। फिर उसके बाद आप डिफरेंट जो है ना वो शेड्स निकाल सकते हैं। वैसे आप 7 टोन्स ऑलमोस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक जब आप शुरू करते हो तो सिर्फ याद रखो कि 3 टोन्स में आपने काम करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे नहीं आ जाती, आपको नेचर स्टडी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को जो आप बनाना चाहते हैं पहले आप उसको देख के प्रैक्टिस करें। खुद से तो आप कुछ भी ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते जब तक आप उसको खुद से सीखोगे नहीं, उसको किसी दरख्त को या किसी भी पत्ते को। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको देख के जब बनाओगे तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी। जैसे जैसे चीज़ें दूर होती जाती है वो लाइट होती जाती है, जो हमारी करीब होती है हम उनको ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। आप ड्राइंग जितने आराम आराम से करेंगे उतनी अच्छी बनेगी।
जैसे जैसे चीज़ें दूर हो जाती है वो छोटी भी दिखती है। ठीक है, जो आपका पहला दरख्त था उस पे आप सबसे ज़्यादा काम करते हो, और जो बाकी की चीज़ें होती है वो आहिस्ता आहिस्ता, जिन पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, ताकि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सबसे पहले नज़र जाए। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा ड्रॉ करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप करते जाएं। जितनी जल्दी काम करेंगे उतना ख़राब बनेगा, जितना अच्छे से करेंगे पेंसिल्स के साथ डिफरेंट शेड्स मिलते हैं 2B 3B, ऐसे ही पहले लाइट, डार्क और डार्केस्ट टोन जो आप निकाल लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप करते जाएं, और 2D के ऊपर, क्योंकि आपने एक 3D इमेज लेके आना होता है। ठीक है, सबको अच्छी लगी? अगले हफ्ते हम फिर कुछ नया सिखाएंगे। और अब बारी है ईमेल की। हमें आज की ईमेल जो है वो कनाडा से दानियाल खालिद ने भेजी है, और उसने कहा है कि उसको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है। वैसे दानियाल सिर्फ 9 मंथ्स के हैं और उनकी मामा ने ईमेल भेजी है, और उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत शौक़ से टीवी की तरफ देखता है और अभी से उसको ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। जज़ाकल्लाह। जो लोग अपने बच्चों को अभी से MTA के आगे बिठाते हैं और उन्हें दिखाते हैं और अभी से उनके अंदर ये शौक़ पैदा करते हैं, और उन्होंने ईमेल भी की। जज़ाकल्लाह दानियाल आपका और आपके मामा बाबा का, जिन्होंने हमें ईमेल की, और उन्होंने कहा कि मेरे दानियाल की तरफ से लिखी है, और उन्होंने लिखा है कि मेरे मामा बाबा भी देखते हैं ये प्रोग्राम। सो तरबियत जहाँ से भी मिले, कुछ भी सीखने को मिले, ज़रूर सीखिए। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत आपका। इस सबक के साथ कि आज हमने दुआ सीखी, हमने हदीस सीखी, और हमेशा हम खुदा ताला से पनाह मांगते हैं हर बुरी चीज़ से, और वो हमारे ईमानों को मज़बूत रखे और हमारे बिलीफ को कायम रखे हमेशा, कि हम उस पर यकीन रखते हैं। वो सारी तालीम, वो सारी तरबियत जो उसने हमारे लिए रखी है। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv, और हमारा पोस्टल एड्रेस है किड्स टाइम MTA इंटरनेशनल 16 क्रेस्टन हॉल रोड, और हमारा पोस्ट कोड है SW18 5QL लंदन UK। इसके अलावा अगर आप ये प्रोग्राम MTA पर देखना भूल गए हैं तो आप किसी भी वक्त YouTube पे जाकर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आप टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 वर्ड और स्पेस देके किड्स टाइम, MTA ऑनलाइन 1 स्पेस किड्स टाइम, और ये प्रोग्राम आप किसी भी वक्त YouTube के ऊपर देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।